Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Muhammad Ibrar Ahmed. I'm your class teacher, Department of History and Arts, Division of Arts and Social Sciences, University of Education, Lahore. In our previous lecture, we have discussed the constitution making process from 1947 to 58 and then delay in constitution making 1947 to 58, in which we have discussed the salient features of 1956 constitution, the Islamic provision of 1956 constitution. This basically ये एक सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस की 1947 से 1958 तक या 56 तक हमने पढ़ा, उसके बाद फिर 56 से 58 तक और वो भी हमने देखा, और फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, देन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उनके सेलेंट फीचर्स, इस्लामाइजेशन, देन प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन. These are the series of lectures of constitution making process, Islamization process in Pakistan. ये हम मुकम्मल करने के बाद then we will move towards the era of Ayub Khan, then Yahya, and then Bhutto, Ziaul Haq, and then we will further move towards the foreign policy and other problems of Pakistan. So the topic of today's lecture is the salient feature of Constitution of Pakistan 1962. 1956 में पहला कानून पाकिस्तान को दिया गया और जो कि विद इन 2 years उसको एब्रोगेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया बाय अयूब खान, अ मिलिट्री डिक्टेटर. और फिर उन्होंने अपनी मंशा के मुताबिक कानून दिया जिसको हम 1962 का कानून कहते हैं. The Constitution of 1962 was the fundamental law of Pakistan from June 1962 to until martial law was declared in 1969. 1962 से 1969 तक ये कानून रहा. Because 1956 का कानून जो था that was abrogated by Ayub Khan in the result of military coup, military martial law in 1958. According to Ayub Khan, 1950 constitution didn't reflect the actual representation, constitutional representation of Pakistan. That's why he intended to formulate, to frame a new constitution according to his wishes to run the country. लिहाजा 1960 में Ayub Khan appointed a commission to report a future constitution of Pakistan. The commission was headed by former Chief Justice of Pakistan Muhammad Shahabuddin with 10 other members, 5 ईस्ट पाकिस्तान से और 5 वेस्ट पाकिस्तान से. And that was the composed of retired judges, lawyer, industrialists and landlords. It is कमीशन की बात हो रही. कमीशन में 5 नुमाइंदे थे जो जज थे, लॉयर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लैंडलॉर्ड्स थे. इस कमीशन ने रिपोर्ट प्रेजेंट की टू अयूब खान ऑन 1961 and thoroughly examined by President and his cabinet at that time. 1962 it was approved. Finally it was approved as a new constitution of Pakistan. It was promulgated by President Ayub in 1962 on 8th June. The Constitution of 1962 contains 250 articles divided into 12 parts and 3 schedules. This is very interesting, you can say, a Constitution of Pakistan that was framed a very prominent personality, Justice Shahabuddin. What are the salient features? How it is the known, इसके खसूसियात क्या हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं.
तो उसकी खसूसियात में सबसे पहले खसूसियत, इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन. It has 5 schedules, 250 articles, which I have discussed few moments ago. The name of country was declared the Republic of Pakistan, same as 1954 Constitution. 1954 वाले में भी यही था, रिपब्लिक था, फिर डिमांड पर जाके इस्लामिक का नाम उसमें ऐड किया गया. दिस इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो सेमी रिजिड था, रिजिड नहीं था. तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक वे. दैट मीन्स यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की अथेंटिकेशन. प्रेसिडेंट चाहे तो उसको आ, वो आप ये कह सकते हैं रिवर्ट भी कर सकता है. और इसी तरह इट वाज अ फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. A federal system was introduced in the country. It consists of central government and 2 provincial governments comprising East and West Pakistan. जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि जी पहले ये मसला बन रहा था, कानून लेट से लेट होता जा रहा था, तो फिर 1 यूनिट का फार्मूला लाया गया कि 1 यूनिट होगा मशरक़ी पाकिस्तान, एक होगा मगरबी पाकिस्तान. मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया. लिहाजा 2 विंग्स पर मुश्तमिल या 2 सूबों पर मुश्तमिल ये सिस्टम डिफाइन किया गया. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट वाज द हेड executive of the nation. He was empowered to nominate the ministers of his cabinet. It was a presidential type of constitution जिसमें प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई. यूनिकैमरल legislature. The legislature would consist of single house. Both wings of country were given the representation in National Assembly. The National Assembly consisted of 300 members, 150 from each wing. जैसे मैंने कहा कि जी एक सिंगल आप कह लें हाउस असम्बली थी. 1956 में दो ऐवान थे, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, लेकिन इसमें एक ही ऐवान था. 300 मेंबर थे, 150 ईस्ट पाकिस्तान से, 150 वेस्ट पाकिस्तान से लिए गए. इस तरह से यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, और बाई कैमरल के 2 हाउसेज, यूनि के एक हाउस होता है. नेक्स्ट है इन डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन. द प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 विंग्स. तो जब अयूब खान आए तो ही इंट्रोड्यूस अ बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम. बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम क्या वार्ड सिस्टम था कि यूनियन काउंसिल लेवल पर 40,000 जो लोग थे वो चुने जाने थे ईस्ट पाकिस्तान में, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान में, मिला के 80,000, और वो एज अ इलेक्टोरल कॉलेज सर्व करेंगे. वही जो है असम्बली के मेंबरान को वो चुनेंगे, और वही जो है सदर को चुनेंगे. लिहाजा उन लोगों ने, उन मेंबर्स ने असम्बली के मेंबर्स को भी चुना, और फिर अयूब खान को भी एज अ सदर चुना. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, देयर वर 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. जैसे पहले मैंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईच ऑफ देम वाज हेडेड बाय अ गवर्नर. गवर्नर उन पर लगाया गया. गवर्नर enjoyed the power in provinces which the president enjoy in center. तो गवर्नर की जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो ज़्यादा ऐसे ही पावर्स को एंजॉय कर रहा था जैसे प्रेसिडेंट करता था सेंटर में. द गवर्नर वर empowered to appoint the provincial ministers with the sanction ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. तो मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट की मर्जी से अपॉइंट करना की पावर्स में शामिल था. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. ईच province was provided with a legislature. It originally consisted of 150 members. However, later on this number was increased to 1/8. 150 से 218 तक बनाए गए, और वो ज़ाहिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का भी उसमें प्रोविज़न थी. 150 मेंबर थे, वो कानून साजी भी कर सकते विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर, अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कहा था प्रेसिडेंट काफ़ी पावरफुल था 1962 के कानून में. तो उसमें द
president should be a Muslim with the term of 5 years. उसको मुसलमान होना चाहिए, 5 साल के लिए था. He was eligible to promulgate ordinance and veto against legislated laws only override able by 2/3 of National Assembly. वो कोई भी कानून बनाया हुआ रद्द कर सकता. सिंपल इज दिस. However, the president was not empowered to dissolve assembly except the cause of his office also. Restrictions to the president. President was not allowed to hold any office of profit in service of Pakistan, but not to prevent from the holding managing private. कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थी जो होती हैं गवर्नमेंट का पार्ट होने पर, कि वो कोई सर्विसेज प्रॉफिट ऑफिस या प्राइवेट प्रॉपर्टी वो इस तरह की ओन नहीं कर सकता. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स प्रेसिडेंट को बहुत सारी आप कह लें कि पावर्स हासिल थी. इसको इस तरह से कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इन 1960 कॉन्स्टिट्यूशन लाइक क्लॉक टावर, ये घंटा घर ऑफ फैसलाबाद. All the power resides in the president. इस तरह फैसलाबाद में भी 8 बाज़ार हैं. 8 बाज़ारों में आप जाएंगे तो आप जाके निकलेंगे घंटा घर के पास. एग्जाम्पल दी गई. फंडामेंटल राइट्स इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन laid down the fundamental right of speech, expression, freedom to choose the profession and freedom to profess the religion. इंश्योर किए गए फंडामेंटल राइट्स 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें स्पीच की आज़ादी, एक्सप्रेशन, प्रोफेशन, प्रोफेस रिलीजन, with regard to civil rights, familiar rights such as right of life, livery, property were granted. फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे. इस तरह जुडिशरी जो थी वो that was the responsible for interpretation of laws, executive orders in the light of principle embodied in a written constitution. उसका काम था कि जी वो इंटरप्रेट करना और प्रिंसिपल्स को वज़ा करना जो बनाए हुए कानून में थे. और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल was also established consisting of 2 judges of Supreme Court. Chief Justice of Supreme Court and 2 judges from High Courts were to be established. Minority rights were granted, ensured in 1962 Constitution. Preamble of 1962 Constitution based on objective resolution. That means objective resolution जो है वो दिबाचा के तौर पर, प्रीएम्बल के तौर पर बनाया गया. इसके मकसद ये था, मीन्स के इससे हट के कोई भी कानून नहीं बनेगा. The principles of policy. The steps were to be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principle and basic concept of Islam. कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी था कि जी जो मुसलमान हैं उनको कलेक्टिवली, इज्तमाही तौर पर, इनफरादी तौर पर उनकी ज़िंदगियों को इस्लाम के जो असूल हैं, बुनियादी असूल हैं, उनके मुताबिक बनाने के लिए फैसिलिटीज़ या फिर स्टेप्स उठाए जाएंगे. एंड शुड बी प्रोवाइडेड द फैसिलिटी वेयर बाय दे मे एनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट. उनकी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक ढाला जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा कि उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें या उसको समझें. कोई भी ऐसा कानून, नो लॉ शैल बी इनैक्टेड विच इज़ repugnant to the teaching and requirement of Islam set out in Quran, Sunnah. All existing laws shall be brought in conformity with the Quran and Sunnah. लोगों की ज़िंदगियों को कानून के मुताबिक इस्लामिक लॉज के मुताबिक बनाने के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ होगा. और जो पहले से बने हुए कानून हैं उनको इस कुरान के और सुन्ना के मुताबिक बनाया जाएगा. सिर्फ मुसलमान ही प्रेसिडेंट बन सकता है. और इस्लामियत को कंपलसरी बनाया गया, कुरान की और इस्लामियत की टीचिंग को. इस तरह प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, वक़फ़, मॉस्क वर इंश्योर्ड. द प्रैक्टिकल स्टेप्स वर टू टेकन
to eradicate what were seen in a social level by Islam, such as use of alcohol, gambling. These were the Islamic provision of Islam Constitution of 1962. Islamic Institute of Islamic Research in 1960 Constitution also provide for the establishment of an Islamic Research Institute with aim to promoting with aim of promoting and study of Islamic history and fiqh to carry out the research in this regard. इस्लामिक हिस्ट्री फ़िक़ा उस पर रिसर्च करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक प्रोविज़न शामिल की गई। यह बनाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियोलॉजी काउंसिल। The Constitution of 1962 provided for the establishment of a Council of Islamic Ideology comprising of religious scholars as its member. The objective of Council was to identify non-Islamic laws and bring them in accordance with the Sharia. The Council was also given opinion about the nature of new laws, bills, and administrative decisions of the government. The recommendation of council, however, were not binding on the president. एक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ये उसका बनाने का कहा गया जिसके मेंबर होंगे और जिसको ये था कि जी जिसकी ऑब्जेक्टिव ये था कि जी वो जो कानून हैं, बिल्स हैं और डिसीजन है जो गवर्नमेंट को उन पर अपनी राय दे, लेकिन इसका राय का मानना जो प्रेसिडेंट उस पर कोई लागू नहीं था। इसी तरह इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फ़िक़ा और उसको लेबोरेट कर सकता है, बट इस पे प्रेसिडेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं थी वो उसको माने। ये थी दीज वर द मेजर प्रोविजंस ऑफ salient features of Constitution of Pakistan 1962, or it was also criticized. So let's discuss the criticism. इसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। वो क्या किस तरह से? वन लिस्ट ऑफ फेडरल लिस्ट containing 49 items that empowered the president and limited the role of legislature. इसमें यह था कि सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद 49 आइटम्स। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया जिसकी वजह से और जो लेजिस्लेचर है उसका रोल जो है लिमिटेड किया गया। इन पावर्स जो सेंटर को दी गई और स्पेशली द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की ज़ात में शामिल कर देगी और इसीलिए फिर चौक घंटा घर या क्लॉक टावर ऑफ लायलपुर की इसको मिसाल दी जाती है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट को इतनी पावर्स दे दी गई, जिधर से भी आए तो प्रेसिडेंट वाज पावरफुल। जो फैसलाबाद का घंटा घर है या फैसलाबाद का जो नक्शा है वो यूनियन जैक की तर्ज पे है, जिधर से भी आए तो घंटा घर आके निकलते हैं। लिहाजा तमाम पावर जो है इसमें इसकी ज़ात में मर्ज कर दी गई। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। डोमिनेंस ऑफ सेंटर, सेंटर जो है वो डोमिनेट कर रहा था और प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दे देंगे कि वो अपनी काबीना खुद चूज़ कर सकता है, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, वो किसी भी बनाए हुए कानून को रद्द कर सकता है। नो रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चूँकि सब पॉलिटिकल पार्टीज के तहत इंतखाबात नहीं हुए थे, बीडी मेंबर्स के थ्रू हुए थे, लिहाजा देयर वाज द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दो अयूब खान जो है वो कन्वेंशन लीग बनाने वाला था, ये उसकी पपेट पार्टी थी। The member of National Assembly were chosen on the personal choice since 1962 Constitution did not recognize the political parties. That means it restricted the growth of political parties. जब उसको रिकग्नाइज नहीं करता तो उसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की उस तरह से ग्रोथ नहीं हुई उस दौर में। तो जब ग्रोथ नहीं हुई तो फिर इसका रिएक्शन आया 1967 में जब पीपल्स पार्टी बनी, स्टूडेंट बाहर निकले, ये सारा दैट वाज द रिएक्शन।
as a provincial governor as an agent of the federal government. जैसे लेक्चर के दौरान भी मैंने वजाहत की और बताया कि जी प्रोविंशियल गवर्नर उसी तरह वो इंजॉय कर रहे थे पावर जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट करता, वो प्रेसिडेंट के नुमाइंदे होते, वही चूज़ करते कैबिनेट को और तमाम मामलात की वही देखभाल करते। लिहाजा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थे, गवर्नर जो थे वो बहुत हद तक पावरफुल थे, इन्फ्लुएंस रखते थे अपना, और प्रेसिडेंट को उसके मुतल्लिक डेवलपमेंट, पोलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से उनको या प्रेसिडेंट को वो इतला देते या पैगाम रसानी करते। देर आर बहुत से अदर ऐसे पहलू हैं जिनको मज़ीद क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एनी डिक्टेटर। यस, उसके बाद जो 1973 का कानून बना उसमें उसमें ये एक शिक शामिल की गई, उसमें इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा गया कोई आके इसको सस्पेंड ना कर दे, इसको ख़त्म ना कर दे। जो ख़त्म करेगा उसकी सज़ा है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सज़ा परवेज़ मुशर्रफ के लिए। तो लिहाजा बाद में आने के लिए डिक्टेटर ने उसकी चंद क्लॉजेस को सस्पेंड किया, फिर बहाल किया या उसको मॉडिफाई किया, लेकिन ख़त्म नहीं किया। दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ any martial administrator। और उसके बाद if in concluding I would like to say that in the result of military coup or martial in Pakistan, according to the wishes, the personal wishes and the personal understanding of Ayub Khan, the constitution of 1962 was framed to prolong, to extend, and to get more powers on the political arena, on the in the politics, on the politician of Pakistan. This was the prime objective of Constitution of Pakistan. Thank you very much.